students, welcome back. We shall now be beginning with understanding of the prevention of diseases. Till now we have studied various diseases such as malaria, ascariasis, elephantiasis, ringworm, typhoid, pneumonia, common cold, and like so on. So basically, when we talk about these diseases can be cured. Fine, they could be deadly even, but as it is said that prevention is better than cure. So basically, when we have various modes by which we can prevent the diseases, why not? So when we talk about this ongoing situation of COVID, we all know that wearing the mask, sanitizing our hands, washing our hands timely. So this all are the preventive measures in order to that those diseases do not enter our body. So basically prevention, as we say that prevention is better than cure, there are various measures by which we cannot allow the diseases to happen only. Fine. So rather than curing it, we have to take some measures wherein it doesn't happen in our body. So maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and the control of many of the infectious disease. When we talk about the infectious disease, so basically public hygiene, fine, and even the personal hygiene, that we need to be hygienic by ourselves also, fine, is very important, so that the infectious disease do not spread from an ill person to an healthy persons. So basically when we talk about the measures for personal hygiene, जब हम personal hygiene की बात करते हैं, जैसे कि मैंने इधर कोट किया है, so personal hygiene include keeping the body clean. It includes, that is, keeping our body that is clean, consumption of clean drinking water, consumption of the food that is been clean, washed vegetables, washed fruits, etc. So this all accounts to be the personal hygiene, that how are we taking care of the things ourselves, that washing our hands, bathing regularly, eating clean food products, and even having proper that is clean and clean drinking water. So that all accounts to be the personal hygienic things, that if we take care of the personal hygiene, obviously we are going to avoid many of the infectious diseases, right? Then similarly when we talk about public hygiene, so basically when we talk about this personal hygiene, just understand that typhoid occurs because of that is contaminated water. If we are drinking clean water, obviously this is not going to happen. Similarly, jaundice happens because of the unsafe drinking water. Ascariasis happens because of the eggs of this ascaris worm which has been laid on the fruits, vegetables, fine, and the other uncooked food. So this all diseases could be avoided if we take care of the personal hygiene. When we talk about the public hygiene, it includes the proper disposal of the waste and excreta, that is waste and excreta, whatsoever is the excreta of the humans, बराबर, it should be properly disposed of. Like जैसे कि कहीं भी excretion करने से तो क्या हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया कहीं से कहीं, ना कि बैक्टीरिया बट बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैथोजेंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं. सो दैट इज़ प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द एक्सक्रीटा. देन पीरियोडिक क्लीनिंग, वी कैन से पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ द वाटर रिजर्वायर. तो पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स, the pools, the tanks, and all of this is required. Suppose if we are having a water drinking tank in our society, we need to clean it off regularly on regular basis, so that we avoid the unsafe drinking water. So that is public hygiene, fine. We keep the water at our place, that is जो घर पे पानी है, वी कीप इट क्लोज्ड, वी आर नॉट कीपिंग इट ओपन एंड एवरीथिंग. सो दैट कम्स इन टू पर्सनल. बट वेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिटी, सो दैट कम्स इन टू पब्लिक हाइजीन, फाइन. दैट इज पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह जो होते हैं, टैंक्स होते हैं, उनकी बात करें तो. और दूसरा आता है तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब में जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट इन अ कम्युनिटी इफ कीप्स ऑन पाइलिंग अप, इट इज ऑब्वियसली गोइंग to spread diseases. The mosquitoes are going to breed and they are going to spread diseases, fine, and therein the bacteria is also going to grow. So that is all, it comes into the proper disposal of the waste and excreta, and all of this is considered to be the public hygiene. So very first thing, ज़्यादातर disease जो हमने बोले हैं वो contamination की वजह से होते हैं. तो food और पानी contaminate होने की वजह से होते हैं. तो food और water जो है वो contaminate होते हैं because we do not take care of the public hygiene as well as the personal hygiene. But हम इन
दोनों का ध्यान रखेंगे तो वी वुड श्योरली प्रिवेंट द डिजीजेस दैट हैपन्स फ्रॉम फूड एंड वाटर. फाइन. Now, these measures are particularly essential when the infectious agents are transmitted via the help of food or water, as I said. So, we have talked about some of the diseases which spread so on. Now, when we talk about in case of airborne diseases, जब हम airborne disease की बात करते हैं जो air से फैलते हैं, fine, such as pneumonia है, when we talk about the other one that is common cold. So, ये सारे measures लेना ज़रूरी है. Public hygiene, personal hygiene जैसे वो लेना ज़रूरी है. बट वी शुड, दोज आर टर्म टू बी एज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट जो एयर से फैलते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड, दैट कुड बी अवॉइडेड बाय वेयरिंग मास्क, अवॉइडेड बाय हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन. वी शुड नॉट शेयर द यूटेंसिल्स ऑफ दैट पर्सन. फाइन. वी शुड नॉट गो टू द ओवर क्राउडेड प्लेसेस. सो दिस जब हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इट शुड ऑल्सो इंक्लूड COVID-19. फाइन. वेर इन दिस ऑल थिंग्स कुड avoid the droplet infections. Fine. Now, जब हम बात करेंगे जैसे कि फॉर डिजीज सच एज मलेरिया है, फिर फिलेरियसिस हैं जो हमने आगे बात की थी. फाइन. आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर. जो किन से फैलते हैं? वेक्टर से फैलते हैं. रैबिस है तो वो डॉग से फैलता है, तो रैबिड एनिमल से फैलता है. तो दैट इज़ वेक्टर को कंट्रोल करो. फाइन. सो द मोस्ट फिलेरियसिस है, मलेरिया है, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? वो जिनसे फैलता है उनको कंट्रोल करो. तो मॉस्किटो से फैलता है तो मॉस्किटो को कंट्रोल करो. तो कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो इंसेक्टिसाइड यूज़ करो. फिर हम मॉस्किटो के लार्वा की बात करें तो हमने देखा है कि मॉस्किटो के लार्वा के कौन खाता है? मॉस्किटो का लार्वा कौन खा जाता है? तो गैम्बूजिया फिश है, तो उसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं. किसी स्टैग्नेंट वाटर है उनमें डाल के गैम्बूजिया फिश को, जहाँ पे वो मॉस्किटो फिर ग्रोथ नहीं करेगा, तो गैम्बूजिया फिश है विच फीड्स ऑन द मॉस्किटो लार्वा. फाइन. तो ऐसी सिचुएशन में जैसे कि मलेरिया है, फिलेरियसिस है, जो वेक्टर्स होते हैं तो हमें कंट्रोल करना चाहिए उनको या फिर एलिमिनेट करना चाहिए. कंट्रोल जैसे कि फ़िश डाल दी तो वो कंट्रोल हो जाएंगे, जैसे कि इंसेक्टिसाइड डाल दिया तो वो किल हो जाएंगे. फाइन. एंड वो ऐसे डिजीज़ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कैसे वेक्टर बॉर्न जो डिजीज़ हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं इनके लिए? सो बेसिकली हम जो पानी जो होता है वो भरा हुआ ना रहे, दैट इज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ना रहे. फिर जो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ हम रहते हैं वहाँ रेगुलर क्लीनिंग हो रही है. फिर घर में जैसे कि मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर रहे हैं. फिश जैसे हमने बात की, गैम्बूजिया फिश यूज़ कर रहे हैं जो वाटर भरा रहता है उधर. फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं. तो फिर जो स्वैम्प्स होते हैं, जो खड्डे होते हैं, उनको हम रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं. फाइन. सो इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मैश. जैसे कि घर पे जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उन पे हम वायर मैश लगा के रखते हैं जिनसे मॉस्किटो अंदर ना आ सके. सो सच प्रिकॉशंस हैव बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट, especially in the areas where we need to clean off this, and this is a very serious matter when we talk about India. Fine. जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, of that spreads because of the vector mosquito. So basically we need to take some preventive measures. Fine. सिमिलरली जब हम बहुत सारे दूसरे इन्फेक्टेड एजेंट्स की जैसे बात करते हैं, तो जैसे कि एड्स हैं तो इट स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले वी हैव टू चेक इट. देन ऑन हेपेटाइटिस हैं तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है. तो ऐसी सब चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है. फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन कुड ऑल्सो लीड टू एड्स. सो दिस आर वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स विच शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल वी नीड टू प्रिवेंट अ गिवन डिजीज़. अब इनके साथ ही साथ ये तो है ही है कि भाई हम ये सब करेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकेंगे मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ को, पर उसके साथ बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है. जैसे कि हम अच्छे से खाना ही नहीं खा रहे तो ऑब्वियसली आवर इम्यूनिटी इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, द नेचुरल आर्मी ऑफ आवर बॉडी इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, एंड दैट इज़ वाई वी विल बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ एवरी नाउ एंड देन. फाइन. सो दैट इज़ बैलेंस डाइट देना, जो इंडिया में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. फाइन. बच्चे की बात करो तो मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री. सो बैलेंस डाइट लेना, व्हेन इट इज़ बीन सेड दैट यू आर वेस्टआउट विथ गुड फूड, you should admire it and eat it properly because it helps in preventing, it helps in building up your immunity. Fine. Similarly personal hygiene जैसे हमने बात की,
तो वो रखना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ नाउ डेज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द साइंस व्हेन वी हैव सीन दैट देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, सो वैक्सीन की वजह से हम पहले से ही बच्चों को वैक्सीन दिलवा देते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। और देन ऑन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन इन द कमिंग पार्ट। सो वैक्सीन देना ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस आर द जनरल वेज, जैसे कि कंटेमिनेशन से जो होते हैं तो वो पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन रखें। ड्रॉपलेट वाले हैं तो उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर वेक्टर बोन वाले हैं, फिर ये सब तो है ही है। साथ में येस, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द फंगल डिसऑर्डर्स, फंगल डिजीजेस, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, वापस वही पर्सनल हाइजीन है कि हमें क्लीन रहना होगा, हमारे कपड़े धोने होंगे, यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन करने होंगे। फाइन, तो दैट इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्किन इन्फेक्शंस दैट हैपन्स ऑन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ फंगस। और उनके साथ साथ ये सारी चीज़ें करना भी ज़रूरी है। फाइन, so this is all about the prevention of diseases. Now we shall be talking about a very important topic of this chapter, that is immunity. Fine, जब हम immunity की बात करते हैं तो what is immunity? जैसे मैंने बात की कि हम अच्छे से खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट होता है, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई व्हेन वी टॉक अबाउट अवर कंट्री, सो वी हैव आर्मी फॉर अवर कंट्री। फाइन, तो वैसे ही वही चीज़ है जो हमारे बॉडी की जो आर्मी है, जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है, उनको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। द एबिलिटी ऑफ द होस्ट, इम्यूनिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, तो व्हाट इज इट, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब में जैसे कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आई एम द होस्ट। सो एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेरे बॉडी में समझ लो कोल्ड का, जैसे कि कॉमन कोल्ड का वायरस एंटर हो रहा है, तो हाउ नाइसली व्हाट इज माई बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, हाउ my body is able to find the common cold causing virus. Fine, so the ability of the host to fight against pathogens conferred by immune system of the host. Who does it? It is being done by the immune system. Fine, जब हम immunity की बात करते हैं तो immunity है अपनी ability, तो वो जो ability है हमें fight करने की, वो ability कौन देता है, तो हमें वो ability मिलती है immune system से। एक system होती है अपनी body में, जैसे कि तरह तरह के फ्लूइड्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड अवर बॉडी। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिनको हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम, जिनसे हमें मिलती है इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है, हमारे बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कितना हम लड़ पाएंगे उनसे। फाइन, और वो किन से मिलती है, दिस इम्यूनिटी इज़ बीन वी गेट इट फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है। व्हेन वी डिवाइड द इम्यूनिटी इनसाइड अवर बॉडी, सो इम्यूनिटी बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट कुड बी इनेट इम्यूनिटी, इट कुड बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फाइन, इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हम इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इनेट मतलब में विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी फ्रॉम द नेटल स्टेज मतलब में जब हम बॉर्न होते हैं तभी से। सो द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, इन दैट इज इनसाइड नेट, दैट इज नेटल मतलब में जब से बॉर्न हुआ है तब से हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। और साथ ही साथ दूसरी इम्यूनिटी है जो हम टाइम टू टाइम हमारे बॉडी सीखती है उसको, तो दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फाइन, जब हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन स्पेसिफिक मतलब में जो मेरी बॉडी में पहले से इम्यूनिटी प्रेजेंट है, जो मेरे बॉडी में पहले से आर्मी बनी हुई है, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर कॉमन कोल्ड, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर मलेरिया, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर हेपेटाइटिस वायरस, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द टाइफॉइड बैक्टीरिया और द टीबी बैक्टीरिया। वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो जनरल होती है। वो कैसी होती है,
जनरल होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हम एक्वायर्ड की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो इम्यूनिटी होती है। फाइन, जैसे कि हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने पर हम क्या करते हैं, किसी एक डिजीज़ से हम बचने की ट्राई करते हैं। बट इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो वो नॉन स्पेसिफिक है, वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं होती, विच इज़ प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी को कैसे मिल रही है, तो इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट बैरियर्स। फाइन, ये जो इम्यूनिटी है वो कैसे काम करती है, तो वो तरह तरह के बैरियर्स बनाती हैं हमारे बॉडी पे, जिनसे बाहर के जो फॉरेन एजेंट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, हमारे बॉडी को इन्वेड ना कर सके, हमारे बॉडी में अंदर ना आ सके। तो कौन कौन से बैरियर से हमें इनेट इम्यूनिटी मिलती है, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर है सेल्यूलर बैरियर, और चौथा है दैट इज साइटोकाइनिन बैरियर। ऐसे 4 बैरियर्स हैं हमारे बॉडी में जिनकी वजह से हमें ये इनेट इम्यूनिटी मिलती है, जिनकी वजह से जो एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट होते हैं दे डू नॉट एंटर इनसाइड अवर बॉडी। विच आर द बैरियर्स? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइनिन। वी शैल अंडरस्टैंड देम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्वायर इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट वी एक्वायर ड्यूरिंग अवर लाइफ स्पैन, ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, हम अपनी लाइफ स्पैन में सीखते हैं। पैथोजन स्पेसिफिक, ये कैसी होती है? ये नॉन स्पेसिफिक है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है, जैसे कि किसी पैथोजन के खिलाफ ही वो बनी होती है। फाइन, सो भाई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विद दैट पर्टिकुलर पैथोजन ओनली, दैट इज द आर्मी विच इज प्लेस्ड, फॉर एग्जाम्पल विच इज प्लेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना, सपोज से इंडिया चाइना, सो those are like supposed to fight against those Chinese army only. फाइन, वो फिर वो आके दूसरे बॉर्डर पे नहीं लड़ेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ लड़ने वाली जो इम्यूनिटी होती है उसे बोलेंगे एक्वायर्ड। वो मेमोरी बेस्ड होती है, मतलब ये जो है वो मेमोरी बेस्ड, ये सारा का सारा हम सीखेंगे डिटेल में। मेमोरी बेस्ड होना मतलब में, जैसे कि समझ लो मेरे बॉडी में ऑलरेडी कोई फॉर एग्जाम्पल if we take the example of TB, for example TB, तो TB के बैक्टीरिया ऑलरेडी मेरी बॉडी में आ चुके हैं। फिर क्या होता है, उनके अगेंस्ट मेरे बॉडी में क्या डेवलप होगा, तो एंटीबॉडीज़, मतलब में आर्मी डेवलप होगी। ये जो सपोज़ मुझे TB क्योर हो गया, बट ये जो आर्मी है वो अपने बॉडी में रहती है, तो सपोज़ सेकेंड एनकाउंटर पे, सपोज़ सेकेंड टाइम मुझे TB का इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये आर्मी तुरंत की तुरंत प्रोड्यूस हो जाएगी, जो ऑलरेडी है, पर वो फिर क्या करने लगी, तुरंत फाइट करने के लिए आ जाएगी। सो दैट इज़ मेमोरी बेस्ड। उनको याद रहता है कि ये TB के ही बैक्टीरिया है, चलो हम फाइट करने जाते हैं। तो ये जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज़ मेमोरी बेस्ड। फाइन, वो हमारे बॉडी में मेमोरी क्या करती है, वो जब दूसरी बार किसी चीज़ का एनकाउंटर होगा वही पैथोजन का, तो वो तुरंत ही उसको याद कर लेगी और फिर क्या करेगी, उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देगी। वी शैल स्टडी ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। फाइन, यस, इसके लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी हमें ये बैरियर से मिल रही है, वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें किन चीज़ों से मिलती हैं, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं अपने बॉडी में, फाइन, जो हमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे रही है, और साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ भी हैं, फाइन, जो हमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे रही है। फाइन, एंटीबॉडीज़ बेसिकली कुछ नहीं होते, वो दोज आर दी आर्मी ऑफ अवर बॉडी, दोज आर प्रोटीन्स। वी शैल स्टडी एवरीथिंग। फिर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव फर्दर क्लासिफाइड है नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव भी फर्दर क्लासिफाइड है नेचुरल और आर्टिफिशियल में, जो हम आगे समझेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ इट इज बीन, हाउ वी गेट दिस एबिलिटी ऑफ फाइटिंग, सो दैट इज गिवन टू अस बाय इम्यून सिस्टम। नाउ बेसिकली इम्यूनिटी किन किन तरह की होती है, तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड। इनेट कैसी होती है, तो नॉन स्पेसिफिक, बर्थ से प्रेजेंट होती है, ये है स्पेसिफिक एंड इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो ये तो दो डिफरेंस हो गए। फाइन, ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। दिस इज़ नॉट मेमोरी बेस्ड, दिस इज़ मेमोरी बेस्ड। इनमें स्पेशलाइज सेल्स और एंटीबॉडीज होती है और इनमें बैरियर्स होते हैं। फाइन, सो होपफुली हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। वी शैल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। वी शैल इन द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट विद इनेट इम्यूनिटी।